السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں جو دل جمی اور محنت سے کام کر رہے ہوں گے۔ تو لاسٹ ٹائم بیٹا لیسن نمبر 1 کی ہم نے ٹرانسلیشن مکمل کی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ہاؤ مچ ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ، کہ آپ نے کتنا سمجھا، آپ کو کتنی سمجھ آئی۔ چیکنگ کمپریہنشن، فہم و ادراک کی جانچ، ذہن کی جانچ، ٹھیک ہے۔ تو سوالوں کے جواب ہے ہمارے پاس۔ پہلا سوال ہے واٹ ڈیڈ دا ریبس ورشپ بفور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریچ اسلام، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ سے پہلے اہل عرب کس کی پوجا کرتے تھے؟ تو سب لوگ جانتے ہیں جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، سبق پڑھا تھا۔ دی عربs worshipped idol before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریچ اسلام، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ سے پہلے عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ What were the teaching of اسلام، اسلام کی تعلیمات کیا تھی؟ ٹھیک ہو گیا۔ اسلام taught love, peace, kindness and respect، اسلام نے محبت، امن، رحم دلی اور عزت کرنا سکھائی۔ نمبر 3 ہے وائی ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم visit the old woman، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھی عورت سے ملنے کیوں گئے؟ اس کا جواب ہے بیٹا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم visited the old woman، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی عورت سے ملنے گئے because کیونکہ she was sick in bed، وہ بستر پر بیمار پڑی تھی، and it was a command of Allah، اور یہ اللہ کا بھی حکم تھا that کہ if people are sick، اگر لوگ بیمار ہوئے a Muslim should visit، تو مسلمانوں کو اس سے ملنے جانا چاہیے، کہ ان سے ملیں، ان کے ملاقات کریں، and help them، اور ان کی مدد کریں۔ سوال نمبر 4 ہے جی ہاؤ ڈیڈ دی اولڈ وومین چینج، بوڑھی عورت کیسے تبدیل ہوگی، کیسے بدل گئی؟ جس کا جواب ہے بیٹا دی اولڈ وومین، بوڑھی عورت واز گریٹلی مووڈ بائی دا کائنڈنس اینڈ لو آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بوڑھی عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رحم دلی سے بہت متاثر ہوئی اور تب بدل گئی۔ سوال نمبر 5 ہے بیٹا وائی ڈیڈ دی اینیمی ٹیک آؤٹ ہز سورڈ ایٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ دشمن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی تلوار کیوں اٹھائی؟ اس کا جواب ہے بیٹا دی اینیمی ٹوک آؤٹ his sword at حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم because he wanted to kill him، اس دشمن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے تلوار اٹھائی کہ نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنا چاہتا تھا۔ یہ تو تھے بیٹا سوالوں کے جواب ہمارے۔ جی بیٹا تو آگے ہے ہمارے پاس کمپریہنشن سکل۔ کمپریہنشن سکل کا کیا مطلب ہوا کہ فہم و ادراک کی مہارت، ذہانت کی مہارت، کاز اینڈ ایفیکٹ، وجہ اور اثر، ٹھیک ہوگا بیٹا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز ون تھنگ میکس این ادر تھنگ ہیپن، کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک چیز جو ہے دوسری چیز واقع ہوتی ہے، دوسری چیز کو بناتی ہے۔ اف یو ایٹ کیئرلیسلی، اگر آپ لاپرواہی سے کھاتے ہیں، یور ہینڈ ول گیٹ ڈرٹی، تو آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ بیٹا غور سے سمجھنا ہے، گیٹنگ ڈرٹی یعنی کہ گندگی ہونا، از واٹ ہیپنڈ کیا ہوا، ایفیکٹ یعنی کہ اثر ہوا، کہ کیا اثر ہوا۔ ایٹنگ کیئرلیسلی لاپرواہی سے کھانا، از وائی اٹ ہیپنڈ یہ کیوں ہوا، کاز ہوگا۔ اس چیز کو غور سے سمجھیے گا کہ گیٹنگ ڈرٹی یعنی کہ گندگی ہونا کیا ہے ہمارے پاس، ایفیکٹ ہے، اثر ہے، یعنی کہ گندے ہاتھ ہو گئے، یہ اثر ہو گیا، یعنی کہ واٹ ہیپنڈ کیا ہوا،
ठीक है, उसे असर हो गया। ईटिंग केयरलेसली, तो किस वजह से हाथ गंदे हुए थे कि लापरवाही से खाने से, तो उसे कहते हैं हम व्हाई इट हैपेंड, तो क्यों हुआ, काज, ठीक है, वजह। योर हैंड गॉट डर्टी, आपके हाथ गंदे होते हैं, बिकॉज क्योंकि यू एट केयरलेसली, आपने लापरवाही से खाया। ये पूरा जुमला होगा। थिंकिंग अबाउट काज, असर के बारे में सोचें, सॉरी वजह के बारे में सोचें, एंड इफेक्ट और असर के बारे में, विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, आपको मदद देगा समझने में, वट एवर, जो कुछ भी यू रीड, आप पढ़ते हैं। लुक फॉर द क्लो वर्ड, ठीक है, नीचे दिए गए अल्फाज को देखें। लाइक, लाइक, सो, लाइक जैसा कि सो, बिकॉज, सिंस, दैट, इज एंड वाई, दैट इज एंड वाई, ठीक हो गया। इन लफ्जों को कहता है कि ये देखें, ठीक है, वो कहते हैं कि दिस वर्ड, ये अल्फाज, गिव यू एन आइडिया, आपको एक ख्यालात देते हैं, तासुर देते हैं, दैट के वन थिंग मेक्स अनदर थिंग हैपन, एक चीज दूसरे चीज के वाक़ई होने का सबब बनती है, ठीक हो गया। कहते हैं कि रीड, पढ़िए, ई सेंटेंस, हर जुमला, विच शोज, जो कि दिखाता है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या वजह बनी, इफेक्ट, असर। राइट द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू शो व्हाई इट हैपेंड, तो दूसरा जो हिस्सा है जुमले का दिखाने के लिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, काज है, ठीक है, वजह बनी। तो यूज द क्लो वर्ड फॉर योर आंसर, तो ये जो अल्फाज इशाराती अल्फाज हैं, ठीक है, इनको आपने क्या करने हैं, अपने जवाबात के लिए इनसे मदद लेनी, ठीक है। पहली मिसाल दे रहे हैं वो, व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ, इफेक्ट हो गया, असर, क्या हुआ, वो कहते हैं जी क्या हुआ, जैसा कि मेरे हाथ गंदे हो गए, असर हो गया। वाई डिड इट हैपन, क्यों, कॉज, वजह बनी, भी किस वजह से हुआ, क्यों हुए, क्योंकि वो आपको पता है कि ऊपर जुमला दिया हुआ है कि केयरलेसली। एग्जाम्पल है जी, दी अरब्स वर्शिप आइडल, अरब के लोग बुतों की, ये उन पर असर हुआ है, वो बुतों की पूजा करते थे, इबादत करते थे, उन पे असर हुआ। अब असर किस वजह से हुआ, वाई इट हैपन, ठीक है, वाई डिड इट हैपन, वो कहते हैं बिकॉज, क्योंकि दे वर इग्नोरेंट, वो जाहिल थे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या कहा, आगे जुमले दिए हैं तो आपने साथ के साथ लिख लेने हैं, ठीक है। वो कहते हैं क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ अरब स्टॉप्ड, अब वो कहते हैं कि जालमाना रस्म और रिवाज रुक गए, खत्म हो गए, ये असर हो गया ना उन पर, किस वजह से हुआ, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इस्लाम बिगेन टू सेपरेट, क्योंकि इस्लाम फैलने लगा, ठीक है, बिकॉज इस्लाम बिगेन टू सेपरेट, ठीक है, वो किस वजह से, कि इस्लाम के फैलने की वजह से उनके जालमाना रस्म रिवाज खत्म। नंबर 2 है, The Arabs wanted to kill हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा नौज़ुबिल्लाह कत्ल करना चाहते थे, ये असर हो गया, उन पे असर हुआ, किसी न किसी चीज का असर हुआ, उनको उकसाया गया, क्यों, क्यों कत्ल करना चाहते थे, बिकॉज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एलोन, ठीक हो गया बेटा, ये भी आ सकता है। और दूसरा जो है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की, तो उन्होंने सोचा कि हमारे जो है बुत भी ताकत खो रहे हैं, उनको भी कमजोर रहे लोग। नंबर 3 है, द ओल्ड वुमेन थ्रू रबिश ऑन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा बूढ़ी औरत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी, ये है असर, ठीक है, इफेक्ट।
क्यों फेंकती थी? बिकॉज शी वॉज अगेंस्ट ऑफ इस्लाम, क्योंकि वो इस्लाम की मुखालिफ थी, इस्लाम के खिलाफ। नंबर 4 है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड द ओल्ड वुमन। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के घर गए, असर हो गया, और क्यों गए वो बन गई वजह हमारे पास। बिकॉज शी वॉज सिक इन बेड, बिकॉज शी वॉज सिक इन बेड। नंबर 5 है हमारे पास दी ओल्ड वुमेन एक्सेप्टेड इस्लाम, बूढ़ी औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। इफेक्ट हो गया, उस पर असर हुआ इस्लाम कबूल करने। क्यों? बिकॉज शी वॉज ग्रेटली मूव्ड बाय द काइंडनेस एंड लव ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली और अच्छे सलूक से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। ये थी हमारे पास क्या वजह। ठीक हो गया बेटा, तो इसको आपने समझा। आगे है हमारे पास बेटा लर्न अबाउट वर्ड्स, यानी कि अल्फाज के बारे में सीखना। ठीक हो गया बेटा। उसमें पहली चीज क्या है? वोकेबलरी है। वोकेबलरी आपको पहले भी बताया गया था कि जखीरा अल्फाज, उर्दू से, उर्दू के मीनिंग इंग्लिश से, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, इसकी वर्ड्स मीनिंग आपको कितने आते हैं उसे कहते हैं वोकेबलरी के। तो नंबर ए है जी वर्ड मीनिंग, ठीक है, अल्फाज मायने। तो पहले जी फेयर, फेयर का क्या मतलब होता है बेटा? खौफ। ठीक हो गया, खौफ होना। अब खौफ होने में देखिए हमारे पास इनमें जो है क्या चीज आएगी खौफ के लिए? कहते हैं कि इट इज एन अनप्लेजेंट फीलिंग, कि एक नाखुशगवार एहसास आता है व्हेन यू थिंक दैट यू आर इन डेंजर, जब आप सोचते हैं कि आप खतरे में हैं। तो फेयर का हमारे पास क्या आया? इट इज एन अनप्लीजेंट। ठीक हो गया बेटा। आइडल्स, तो आइडल्स जो होते हैं वो क्या है? बुत। स्टेटस, स्टेट्यूज, स्टेट्यूज और सम ऑब्जेक्ट दैट आर वर्शिप्ड बाय फॉलोअर ऑफ सर्टेन। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे स्टेच्यू होते हैं, यानी कि बुत, मुजस्मे, मुजस्मे या कोई और चीजें जो इसकी कुछ जो है खास किस्म के मजहब के लोग जो है उनकी पैरवी करते हैं। हो गया आइडल। बुत को खुद भी जानते हैं, मट्टी से बनाए जाते हैं, ठीक है, पत्थर से बनाए जाते हैं। तो आगे बेटा वर्शिपिंग, वर्शिपिंग का क्या मतलब होता है बेटा? इबादत करना। ठीक है, तो क्या आ गया? प्रेइंग एज पर टीचिंग ऑफ आवर रिलीजियन, यानी कि इबादत करना इस इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन क्या होता है बेटा? जहालत। ठीक है, विदाउट नॉलेज ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज के बगैर इल्म के, जिनके कोई इल्म ना होना किसी चीज के। तो प्रैक्टिस काम, ठीक है, काम हो गया हमारे पास, रसूम होगी। दैट पीपल डू रेगुलरली, वो चीजें कि जो लोग क्या रेगुलरली बाकायदा तौर पर करते हैं। ठीक हो बेटा। तो इसके बाद जो है हमारी छोटी सी बी ऑप्शन है वर्किंग विद वर्ड्स, यानी कि लफ्जों का इस्तेमाल हमने करना है। फाइंड द बेस्ट वर्ड, वो कहते हैं मुनासिब लफ्ज तलाश करें टू फिलिंग द ब्लैंक, खाली जगह पूरी करनी है। स्प्रेडिंग, फैलना, कॉन्फिडेंस, एतमाद, हरास, तंग करना, हरासा करना, रबिश, ठीक है, कूड़ा क्रिकेट, रिवेल, जाहिर करना। ठीक है, द लाउड नॉइजेस डैश में, वो कहते हैं कि बुलंद जो शोर हैं बड़े, वो क्या करते हैं? ठीक है, हरास, यानी कि तंग करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। द लाइट वाज डैश ऑन ऑल साइड,
Light was spreading on all sides. She threw all the dash in the garbage can. क्या गया? She threw all the, ठीक है, rubbish in the garbage. He said, उसने कहा, that with the dash. उसने खुद एतमादी से एतमाद वाले लहजे में कहा, तो with confidence. नंबर 5 है, the villagers wanted to dash their achievement. The villagers wanted to dash reveal their achievement के ख्याति अपना कारनामा जाहिर करना. ये था बेटा आज का हमारा लेसन. तो इसको आपने याद करना है अच्छी तरीके से, जो चीज़ समझ ना आए तो डिस्कस करनी है, और बाकी नमाज और कुरान की पाबंदी भी कर रहे होंगे बेटा. तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.